Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this channel, we have exhaustive coverage of banking current affairs. And the playlist from July 20 onwards are available. So there are month-wise playlists. July 20, August 20, September 20, October 20, November 20, December 20, January 21, February 21. All these playlist links are available on the home page of this channel. The moment you will visit the home page, you will find playlist link. And just scroll through this playlist link, you will find month-wise videos. Watch all these videos, full of knowledge. Many questions comes from this series. This is going to help you in every interview and written examination. So today in this video, we are covering February 1st to February 7th banking current affair. The first news is banks extended retail loan worth 18,840 crore in December 2020. Now this amount is very less as compared to previous 2 months. In October, banks extended 39,780 crore. November 33,107 crore and December 18,840 crore. That means demand of credit in the retail segment is falling. The annual growth is also falling. It is just now 9.5% on year-to-year basis. So this is showing you a trend in which direction our economy is moving. Demand for consumer credit is falling. Another news is FPI remained net buyer of rupees 14,694 crore in January 2020. Third news is government to infuse 20,000 crore as capital in public sector banks. Next news is NPA came down from 10.36 lakh crore as on 31st March 2018 to 8.08 lakh crore on September 20th, showing a tremendous fall of 2.28 lakh crores. Very significant fall. So banking industry is doing well. The next is bank credit grew by 6.36%. This is a matter of concern. The credit growth is falling fortnight after fortnight. And deposit growth still remains good, 11.41% for the fortnight ended 1st January 2021. The next news is IPO of LIC is likely to hit market after October. Next is Canara Bank raised 120 crores Tier 2 bonds. Next news is no change in repo, reverse repo, MSF bank rate as per credit policy of this 2 months. Fresh investment in financial year 22 can be parked in held to maturity bucket to help government to borrow 12 lakh crore in financial year 2022. Government is going to take massive money as loan in shape of bonds that is 12 lakh crore. And this loan that they are going to raise will be mainly contributed by banks and insurance companies. And that's why RBI given a relaxation that they can hold this in held to maturity bucket so that they need not provide any provision for depreciation in value of such bonds. And next news is PhonePe became number 1 in UPI transaction, and second is Google Pay, and third is Paytm. Earlier Paytm was used to be ahead of all this. Now PhonePe has taken the leadership. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आपके इस चैनल पर बैंकिंग करंट अफेयर की आप भरपूर नॉलेज अवेलेबल है और ये कंटेंट है वेरियस प्लेलिस्ट में. जुलाई 20 की, अगस्त 20 की, सितंबर 20 की, अक्टूबर 20 की, नवंबर 20 की,
दिसंबर 20 की, जनवरी 21 की, फरवरी 21 की अलग अलग प्लेलिस्ट है। और ये प्लेलिस्ट आपको होम पेज पे इसके लिंक मिलेंगे। जब आप होम पेज पे जाएंगे चैनल के, वहाँ पर प्लेलिस्ट लिंक है, उसको आप स्क्रॉल थ्रू करेंगे, आपको ये सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सारी वीडियोस यदि आप देखते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत शानदार हो जाएगी। और एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इन समाचारों से। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चैनल पे ये वीडियोस हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिटन एग्जाम्स में एंड इंटरव्यू में। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी की न्यूज़। बैंक्स ने रिटेल लोन 18,840 करोड़ का बांटा है दिसंबर 2020 में। और अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो अक्टूबर में यह था 39,780 करोड़, नवंबर में था 33,107 करोड़। तो ये फॉलिंग ट्रेंड है। मींस जो रिटेल लोन है वो घटता जा रहा है बैंक्स का फ्रेश डिमांड पे। ये इकोनॉमी की कंडीशन को डिपिक्ट करता है। और ग्रोथ भी यदि आप देखें तो जो रिटेल क्रेडिट की ग्रोथ है वो भी गिर के अब 9.5% ईयर ऑन ईयर पर पहुंच गई है। इसके अगली खबर है एफपीआई नेट बायर्स हैं 14,694 करोड़ के जनवरी के अंदर। गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ नई कैपिटल इन्फ्यूज करने का फैसला किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एनपीए जो 10.36 लाख करोड़ थे मार्च 18 के अंदर, अब वो घट के 8.08 लाख करोड़ हो गए हैं सितंबर 20 के अंदर। बैंक क्रेडिट की ग्रोथ 6.36% है। डिपॉजिट की ग्रोथ 11.41% है 1 जनवरी 2021 को समाप्त फोर्टनाइट पे। एलआईसी का आईपीओ अक्टूबर माह के बाद आएगा। केनरा बैंक 120 करोड़ टायर 2 कैपिटल बॉन्ड रेज किया है। रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 में होगी वो बैंक्स हेल्ड टू मैच्योरिटी बकेट में पार्क कर सकते हैं, ताकि भारत सरकार 12 लाख करोड़ का जो उधार लेना चाह रही है वो ले सके आसानी से बैंकों से, इंश्योरेंस कंपनीज से। क्योंकि यदि हेल्ड टू मैच्योरिटी में नहीं रखेंगे तो काफ़ी बैंक रिलक्टेंट होते हैं इन्वेस्ट करने में। क्योंकि यदि उसकी वैल्यू घट गई बॉन्ड की तो घाटा डालना पड़ता है, डेप्रिसिएशन डालनी पड़ती है। तो उससे इम्यूनिटी दे दी है आरबीआई ने कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई इसको डेप्रिसिएशन डालने की जरूरत नहीं है। फोन पे नंबर 1 यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला ऐप बन गया। सेकंड नंबर पे है गूगल पे और थर्ड नंबर पर है अब पेटीएम। तो ये हमारी मुख्य खबरें थी। अब इसके अलावा आपको करंट अफेयर तैयार करना है, उसका अच्छा सोर्स होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। यहां से आप क्लिक करेंगे, आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। कूपन कोड AA03 अप्लाई कर लीजिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और 2021 का प्लान आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 साल की इसकी वैलिडिटी हो गई आपकी। फिर हमें पुराना कवर करना है जनवरी से दिसंबर 2020। उसके लिए 2020 का प्लान ले लीजिए। वहाँ भी कूपन कोड AA03 यूज़ कर लीजिए। ये वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको प्लान। अब ये जो करंट अफेयर है केवल बैंकिंग में काम नहीं आएगी, आपके एसएससी के एग्जाम में भी काम आएगी, रेलवे में भी काम आएगी, यूपीएससी एग्जाम्स में भी काम आएगी, आरपीआई के एग्जाम्स में भी काम आएगी, सब जगह काम आएगी और आपके इंटरव्यूज में भी काम आएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।